चलिए, तो इस लेक्चर में, क्योंकि लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने different commands or different statements that we generally use in APT program, those things we have discussed in the previous lecture. In this lecture we will be solving, or we will be preparing a part program for some manufacturing operation, machining operation like milling and drilling, etc. So let us try to make an APT part program for a drilling operation. So question is, write an APT part program or APT program, automated programming tool program, to drill holes in a plate as shown in figure below. Spindle rotates at 500 rpm and requires 65 mm feed rate. 5 mm फीड रेट इज 0.5. ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको छोड़ देना अभी 65 को, ठीक है. ये गलत लिखा है, इसको स्टेटमेंट ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना. ये है, write an APT part program to drill holes in a plate as shown in figure below. Spindle rotates at 500 rpm and feed rate is 0.5 mm per revolution to drill the hole. होल को ड्रिल करने के लिए. दिस इज द प्लेट दैट इज गिवन. द लेंथ ऑफ द प्लेट इज 70-30, दैट इज 130 mm, and this is 70 mm is the width of this plate, and the hole P1 is at this location, that is coordinates from this point is x is 30, y is 30, and for P2 x is 100, y is 30. For P3 x is 65 and y is what is the value, that is 60. ठीक है. So you have to know the coordinates of this particular point. So for point P1 the coordinates are, what are the coordinates? 30, assuming this lower left corner it is 0, let us supposing, or we are considering that these are the axes, x-axis, and this is the y-axis. So in the absolute mode the coordinates of the points P1, P2, P3 will be this. For P1 it is 30, for P2 the coordinates are 100, 30. P3 are 65, 60. 65, 60. These are the coordinates of 3 points, because it is also required to know the coordinate, because we have to identify, we have to represent the points P1, P2, P3. We have to represent these points, which is important for us. So this is the basic plate, and we have to drill the holes at P1, P2 and P3 location. Moving ahead, so this is the top view, and when we are giving the side view, then we will be looking like this. So we have considered this point over here, that is 0, 0. This is the coordinates point, and this is P1. So we will be creating a hole at location 30 mm from this side. So this is the hole P1. Similarly, the hole P2 will be at this, and there will also be another hole at 65 mm radius, that is this one hole will be at this location, that is at the location this mm, we can say at this point. We will be having the third hole P3 like this. So third hole will be at this point, that is P3 point. So we have to create this one and this one, and also you can see the thickness of this plate is 20 mm. So I think you are clear about the various points, or the things we are getting over here. ठीक है. तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि क्या प्लेट है हमारे पास और कहाँ कहाँ होल करना है. ठीक है. क्या क्या इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को? बताइए. यस सर. प्लेट की थिकनेस क्या है, ये सारी चीजें क्लियर है. Now we will be preparing a part program. The similar way we will be preparing first the program, and second is the explanation. Okay, so we will be starting with the first. We will be defining the machine, which machining process we want to perform. So we have given machine slash drill, 05. ठीक है. तो क्या हुआ, ये मैं मशीनिंग करने वाला हूँ. ड्रिल मतलब ड्रिलिंग ऑपरेशन में करने वाला हूँ. 05 का मतलब है कि जो मशीन आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कि 05 नंबर पे जो
जो ऑपरेशन जो होगा वो 05 नंबर पे वो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन होना है, ठीक है। तो जो मशीनिंग है आपकी मशीन, ड्रिल मशीन जो है वो 5वें नंबर पे लगी हुई है। तो दिस इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन आइडेंटिफिकेशन नंबर। मशीन, ड्रिल मशीन आप यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग एंड सॉरी यू आर प्रिपेयरिंग अ पार्ट प्रोग्राम फॉर द ड्रिलिंग ऑपरेशन। सो ड्रिल मशीन यू हैव सेलेक्टेड, that is at the location number 5 or specification number 5. Then second step is CLPRNT, that is we will be printing the cutter location data. कटर आपका कहाँ पर है उसको प्रिंट करने के लिए, सो यू शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ कटर लोकेशन डेटा, ये हो जाएगा। दिस समथिंग यू हैव टू, आई थिंक some of the things you will be repeating in every program, so this things you have to prepare, you have to write in every program. यहाँ से यहाँ तक ये वाला स्टेटमेंट जनरली आएगा, बस ड्रिल की पे मिल हो जाएगा, इस तरीके से चेंजेस होते रहेंगे। CLPRNT आपको लेना है कि कटर लोकेशन की डेटा है, दैट विल रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ कटर एट दिस पर्टिकुलर टाइम। एंड देन यूनिट्स इन mm, units/mm, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट और गिविंग द यूनिट्स इन द mm। तो ये स्पेसिफाई यूनिट्स को। इसके बाद टारगेट पॉइंट आपको डिसाइड करना है, ठीक है। टारगेट पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया है, हालांकि इसमें 0 दिया था लेकिन मैंने माना -50 -50, मतलब x -50 y -50 एंड z 0, x -50 y -50 z 0 कहाँ होगा भाई? x -50 मतलब यहाँ, y -50 मतलब यहाँ, और z 0 है ना, तो z 0 मतलब इसी लोकेशन पे मान लिया। लेकिन मुझे सोचना है इसको भी 50 मान लेना है, +50 मान लेना, जिससे कि ये ऊपर की ओर चला जाएगा। -50 की जगह पे यहाँ पे 0 भी मान सकते हो, लेकिन 0 से थोड़ा सा और क्लियरेंस देने के लिए 10 भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। क्लियरेंस आप कितना प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो -50 की जगह पे इसको भी 10 लिख सकते हो, ठीक है। सो स्पेसिफाइंग द टारगेट पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट वेयर द टूल इज लोकेटेड। पहले तो हमने देख लिया कि आपका CLPRNT देकर के आपका कटिंग टूल अभी कहां पर है, लेकिन टारगेट पॉइंट का मतलब है यू हैव टू डिफाइनिंग द टारगेट पॉइंट और सेट पॉइंट विच रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द कटिंग टूल विद रेस्पेक्ट टू द वर्कपीस। वर्कपीस के रेस्पेक्ट में आपका कटिंग टूल क्या है, तो आपको पहले इनिशिएट करना पड़ेगा कि आपका कटिंग टूल किस लोकेशन पर है। तो टारगेट पॉइंट आप लोगों ने डिसाइड किया, सेट पॉइंट डिसाइड किया, सेट पॉइंट, और ये सेट पॉइंट का एक पॉइंट है जिसका जो x कोऑर्डिनेट -50, y कोऑर्डिनेट -50 एंड z कोऑर्डिनेट इज 0। आप 10 लिख लेना तो और ठीक रहेगा, थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड कर लेते हैं इनिशियली हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया जी? हाँ जी, ये तो बेसिक डिटेल हम लोगों ने दे दी है इंट्रोडक्शन टाइप की। अब हमें ज्योमेट्री डिफाइन करनी पड़ेगी, डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसका अगला पॉइंट है हमारा, या तो स्टार लगा करके लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिक पॉइंट। तो ज्योमेट्री में जो पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, जिन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, जहां आपको ट्रेवल करना है, उन सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। कौन से पॉइंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा? एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट। तो आप लिखोगे P1 इज टू पॉइंट स्लैश इसके कोऑर्डिनेट, P1 इज टू पॉइंट स्लैश उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x30 y30 z10, ठीक है। x30 y30 z10, ठीक है। पहला पॉइंट मान लिया। Z तो आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्पेसिफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ बोलो सर। जो आपने जो टारगेट पॉइंट लिया है -50 ठीक है, 0 वो ठीक है, लेकिन आप सर 10 बताया था, वो क्या था सर? वो समझ नहीं आ रहा। मतलब इसलिए बताया था कि थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए मैंने बोला था। यस लेकिन हालांकि इस वाली प्लेट की बात करेंगे तो पॉइंट प्लेट पर ही रहना चाहिए वैसे, लेकिन नहीं, वो कोई नहीं, आप कहीं भी ले सकते हो। मतलब x y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट तो आप कहीं पे भी मार्क कर सकते हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपका वर्कपीस ये है, सपोज ये आपका वर्कपीस है, तो 0 अगर यहाँ लाई कर रहा है, 0 अगर यहाँ लाई करना है, तो मैंने थोड़ा सा क्लियरेंस बना के रख दिया। यहाँ पे आपका कटिंग टूल यहाँ होगा, बस 10 mm का क्लियरेंस बना के रख दिया, बस इसलिए, बस मैंने 10 से इसलिए बोला, और द रेस्ट इज ओके, ठीक है। आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इनिशियल फिनिश थोड़ी सी नहीं मिलेगी। फिर हमने क्या किया? पहला पॉइंट डिफाइन किया। पहला पॉइंट डिफाइनिंग के लिए क्या किया? पॉइंट डिफाइन करने का मैंने बोला था P1, उसका नाम किया दिया आपने, उस पॉइंट को आपने बोला है P1, दैट इज इक्वल टू, अब उसकी वैल्यू असाइन करोगे। तो P1 है क्या? P1 एक पॉइंट है, स्लैश इसके कोऑर्डिनेट आप लोगों ने डिसाइड कर दिए, क्योंकि पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए
रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ दे देते हैं। तो डिफाइनिंग द पॉइंट P1, इसी तरीके से पॉइंट P2 डिफाइन कर दोगे। पॉइंट P2 इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 100, 30, 10, 100, 30, एक्स वाई तो पता है हमें, 100, 30। देखो यहाँ पे इस पॉइंट P2 पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100, वाई यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, 100, 30, 10। इसी तरीके से पॉइंट P3 भी डिफाइन कर दोगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है x की वैल्यू 65, y की वैल्यू 60 और z की वैल्यू 10। 65, 60, 10, मतलब आप लोगों ने ज्योमेट्री डिसाइड कर लिया, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ज्योमेट्री डिसाइड हो गई। अब हमें क्या करना है, मोशन स्टेटमेंट देने हैं। बाकी क्योंकि हमें इसमें लाइन का तो मतलब है नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, तो लाइन डिफाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है कि कोई इसमें, क्योंकि ड्रिलिंग करनी हमें नहीं, पॉइंट पे काम करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जिन पॉइंट पे जाना है बस वही पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, उन्हीं पॉइंट को डिफाइन करना है, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट डिफाइन किए, अब कहाँ से मूव करेगा आपका कटिंग टूल, फ्रॉम/टारगेट, फ्रॉम/टारगेट। तो टारगेट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है। टारगेट पॉइंट आपका कटिंग टूल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, कहाँ से, -50, 10, यहाँ से आपका कटिंग टूल मूव करना स्टार्ट करेगा। सो योर कटिंग टूल विल बी मूविंग और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द कटिंग टूल रैपिड। रैपिड के लिए आप क्या लिखोगे, सीधे जो आपका मैन्युफैक्चरर है उस मशीन का, जिसने वो मशीन टूल मैन्युफैक्चर किया है, वो पहले से ही एक रैपिड मोशन उसको डिसाइड कर देता है कि भाई रैपिडली अगर आपका कटिंग टूल मूव करेगा, तो मान लिया कि 100 mm पर मिनट की स्पीड से 100 mm पर मिनट या पर रेवोल्यूशन पर मिनट या 100 mm पर RPM जो भी होगा, उस पर्टिकुलर स्पीड से आपका कटिंग टूल मूव करेगा, अगर वो रैपिड मोशन हम लोग उसको दे रहे हैं तो, ठीक है ना। हम लोग जी कोड में भी यूज करते थे रैपिड, तो यहाँ पर रैपिड के लिए रैपिड यूज करना, RAPID ये यूज करेंगे, तो आपका कटिंग टूल इस टारगेट से रैपिडली मूव करेगा, ठीक है, रैपिडली मूव करेगा। कहां पर जाएगा, गो टू मतलब देखो हम पॉइंट टू पॉइंट मोशन चल रहे हैं ना, वी आर फॉलोइंग P2P मोशन, पॉइंट टू पॉइंट मोशन, तो यहाँ पर हमें गो टू जाना है। अब आपका कटिंग टूल टारगेट पॉइंट से रैपिडली मूव करेगा, कहाँ पे जाएगा, P1 पे। P1 कहाँ लोकेशन है, योर कटिंग टूल विल बी मूविंग लाइक एट दिस पॉइंट, ठीक है। अभी आपने स्पिंडल ऑन नहीं किया, अब आपने क्या किया, स्पिंडल SPINDLE नहीं आएगा, SPINDL आता है, स्पिंडल/500। आप लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया, फिर जो कटिंग टूल है, जो कि आपका ड्रिल बिट है, उसका जो स्पिंडल है वो स्पिंडल हमने ऑन किया, आपकी ड्रिल बिट अब घूमना स्टार्ट करने लगी है 500 RPM से। क्वेश्चन में जो दिया वो वाला यूज करना है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। कॉमा आपको लिखना है CLW, ये CLW रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो कटिंग टूल है दैट इज राइट स्पिंडल स्टार्ट्स रोटेटिंग एट 500 RPM इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। CLW मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपका स्पिंडल जो है 500 RPM से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट किया है। तो यहां तक क्या है, यहां तक क्या है कि ये आपकी प्लेट थी, आपका कटिंग टूल यहां पर प्रेजेंट है और कटर आपका घूमने लग चुका है। अब हमें क्या करना है, आपका कटिंग टूल को ड्रिल बिट को नीचे लेकर के जाना है ना, नीचे ले जाना है ना। यस सर। तो आपको फीड रेट देनी पड़ेगी, तो फीड रेट हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो आपका कटिंग टूल जहां भी था -50, -10 से रैपिडली यहां तक आ चुका है, तो हमें रैपिड दे दिया, तो फीड रेट देने की जरूरत नहीं। लेकिन अब जब ड्रिल करेगा तो किसी एक पर्टिकुलर फीड से नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा आपका ड्रिल, आपका जो ड्रिल बिट होगा किसी पर्टिकुलर स्पीड से नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो फीड रेट /05, MMPR, तो फीड रेट आपने 0,05 दे दी, और MMPR का मतलब है फीड जो आपने दी है वो 0.05 mm पर रेवोल्यूशन दी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फीड को रिप्रेजेंट करेंगे। MMPR का मतलब है फीड रेट mm पर रेवोल्यूशन, अगर mm पर मिनट होगा तो MMPM आ जाएगा यहाँ पे, mm पर मिनट के लिए देने के लिए, ठीक है। तो फीड रेट यू आर गिविंग द फीड रेट इन 0.05 mm पर रेवोल्यूशन, तो आपने 0.05 mm पर रेवोल्यूशन फीड रेट दी। अब क्या करेंगे, अब आपका कटिंग टूल जहां भी रोटेट कर रहा है वहां से आप नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जाएंगे मतलब माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर पहले इनिशियली आपकी लोकेशन +10 थी और 20 mm जो है वो वर्क पीस की डिस्टेंस है, तो हम थोड़ा सा ओवर ट्रेवल चल लेते हैं, 5 का हमने ओवर ट्रेवल चल लिया है, तो 10 और 20 30 और 5 35, तो इन्होंने 35 mm का जो Z डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है, तो गो डेल्टा इन्होंने यूज किया है। गो डेल्टा का मतलब क्या है, गो टू भी लिख सकते थे, गो डेल्टा क्यों लिखा,
गो डेल्टा किसके लिए यूज किया जाता था, मैंने आपको बताया था क्या, फीड रेट जो सॉरी मोशन देने के लिए कटिंग टूल को इन इंक्रीमेंटल मोड, याद आ रहा है? यस सर। इंक्रीमेंटल मोड में हमने कटिंग टूल को फीड दी है, तो एक्स में हमने बिल्कुल भी नहीं डिस्टेंस चली है, वाई में बिल्कुल नहीं, लेकिन जेड डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में हम 35 डिस्टेंस मूव किए हैं। ठीक है, यहां से 35 नीचे की ओर गए हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये इंक्रीमेंटल मोड में हम लोगों ने फीड रेट दी है, सॉरी कटिंग मोशन दिया है इन इंक्रीमेंटल मोड, पॉइंट टू पॉइंट मोशन इन इंक्रीमेंटल मोड। अगर आप इंक्रीमेंटल में नहीं देना चाहते थे तो आपको गो टू लिखना चाहिए था, अगर इंक्रीमेंट में नहीं देना है तो गो टू जाना चाहिए था, स्लैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस पॉइंट पर, एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर हो जाएगी पहला कहां पर है पॉइंट P1 30, हाँ, तो गो टू 30, 30, जेड की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी -25। अगर आप गो टू यूज करते तो 30, 30, -25 होती, और अगर आप गो डेल्टा यूज करना चाह रहे हो, इंक्रीमेंटल मोड यूज करना चाह रहे हो, तो वो 30, 30 सॉरी 0, 0, -35 हो जाती। दिस इज द टूल विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड बाय अ डिस्टेंस 35 mm विद द गिवन फीड रेट। ठीक है, यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी, यहां तक समझ में आ गया। अब आपका कटिंग टूल जो है वो ड्रिल कर चुका है, ओवर ट्रेवल भी कर चुका है, अब आपको बाहर निकालना है ड्रिल बिट से, तो फिर क्या करेंगे, गो डेल्टा, एक्स में कुछ नहीं चलना, वाई में कुछ नहीं चलना, जेड में फिर वो +35 चला जाएगा। करंट लोकेशन से +35 मतलब दोबारा से वहां आ चुका है। ठीक है, योर टूल रिट्रीव्स मतलब अपनी लोकेशन पे दोबारा आ गया। ठीक है, दोबारा आने का मतलब है कि अगर ये प्लेट है, कटिंग टूल ने ड्रिल किया यहां तक, और ड्रिल करने के बाद ये दोबारा से बाहर निकल चुका है, यहां से यहां तक आपका ड्रिल बिट आ चुकी है, यहाँ आ चुका है, मतलब आपका ड्रिल बिट अब कहां पे पहुंच गया, दोबारा से निकल के यहाँ आ चुका है, यहाँ से 10 mm ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यस सर, अगला स्टेप क्या होगा, हाँ जी, अब क्या होगा, अब आपका कटिंग टूल कहां जाएगा, गो टू जाएगा, इसके बाद गो टू आएगा ना, स्लैश P1 की जगह पर क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। हाँ जी, आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, ये आ जाएगा। फिर फीड रेट डिसाइड करनी पड़ेगी क्या आपको, नहीं, फीड रेट डिसाइड नहीं करनी, तो फिर रैपिड लिखना पड़ेगा, रैपिड तो लिखना पड़ेगा। जब आपका कटिंग टूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, बीच में कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही है, तो रैपिड जाना पड़ेगा। तो वही है, गो डेल्टा के बाद रैपिड, आपका कटिंग टूल रैपिडली मूव करेगा। गो टू जाएगा कहां पर, स्लैश P2 पॉइंट पर गया, आपका कटिंग टूल P2 पॉइंट पर गया। इसके बाद स्पंडल चाहे तो बंद कर सकते हो, या बंद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। स्पिंडल स्लैश 500 RPM से आपका स्पिंडल दोबारा से रोटेट करना स्टार्ट होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से भी घूम ही रहा है, बंद नहीं किया हमने। फिर फीड रेट डिसाइड करनी पड़ेगी। जब आपका कटिंग टूल रैपिडली मूव किया, रैपिडली मूव करने के बाद दूसरे पॉइंट P2 पर पहुंच गया, अब आपको मशीनिंग तो करनी है। अभी तक जैसे ही आपने रैपिड लिखा, कटिंग टूल की जो फीड रेट होगी वो चेंज हो गई है। जो हमारे पास फीड रेट हमने यहां डिसाइड की थी, यहां डिफाइन की थी, ये वाली फीड रेट यहां डिफाइन की, जैसे ही हमने रैपिड दिया तो ये वाली फीड रेट हट जाएगी और ये रैपिडली मूव करने लगेगा। अब आपका कटिंग टूल कहां पर है, अभी तक पॉइंट P1 पे था, अब ये पॉइंट P2 पर जा रहा है, इस जगह जा रहा है रैपिडली, लेकिन अभी इसके ऊपर ही घूम रहा है, हमें अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा इसको। तो पेनिट्रेट करने के लिए गो टू पॉइंट P2 पर पहुंच गया। अब स्पिंडल आपका घूमना स्टार्ट हो गया, फीड रेट आपने डिसाइड कर दी 0. फीड रेट कितनी डिसाइड कर दी, 0.05 MMPR, डिफाइनिंग द फीड रेट डिफाइन किया। फिर गो डेल्टा, अब करंट लोकेशन यहाँ पर कटिंग टूल है, वो नीचे अंदर की ओर पेनिट्रेट करेगा, कितने डिस्टेंस, वही। अब यहाँ पर x0 बिल्कुल जिस करंट लोकेशन पर है वहीं पर रहेगा, x में कोई भी मूव नहीं करेगा, y में कोई भी मूव नहीं करेगा, केवल z में माइनस नीचे की ओर जाएगा 35 mm। मतलब ये होगा कि आपका जो ड्रिल बिट है इस लोकेशन पर 35 mm नीचे चला जाएगा, अंदर तक यहां पर पहुंच जाएगा। इसकी जो नीचे वाली बिट होगी वो यहां आ जाएगी, यहाँ। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, अब ड्रिल होल करने के बाद इसको टूल को बाहर निकालेंगे तो गो डेल्टा मतलब इंक्रीमेंटल मोड में आपने दिया मोशन टूल रिट्रीव करने के लिए, तो x0 y0 और z +35। अब ये आपका कटिंग टूल ड्रिल करने के बाद बाहर आ जाएगा, निकल आएगा बाहर। फिर क्या करेंगे, निकलने के बाद क्या करेगा, रैपिडली मूव कराएंगे अपने कटिंग टूल को किस लोकेशन तक, टू द करंट लोकेशन नंबर फ्रॉम करंट लोकेशन टू, यहाँ पे हो चुका है ड्रिल, यहाँ हो चुका है, अब तीसरी लोकेशन पे जाएगा तो रैपिडली आपका कटिंग टूल मूव करेगा यहाँ से लेकर के इस वाले कोऑर्डिनेट तक, तो रैपिडली मूव करेगा, गो टू कहाँ पे जाएगा, पॉइंट 3 पर जाएगा, गो पॉइंट P3 पर जाएगा। इसके बाद स्पिंडल को स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज में, फीड रेट डिसाइड करोगे mm पर रेवोल्यूशन में, और गो डेल्टा। अब यहाँ पर जो आपका स्पिंडल रोटेट हो रहा है वो अंदर पेनिट्रेट करेगा, इसके लिए आपने z की वैल्यू केवल चेंज की है -35 की, आपका टूल अंदर की ओर पेनिट्रेट करेगा। इसके बाद गो डेल्टा, बाहर निकल जाएगा, टूल रिट्रीट हो रहा है। इसके बाद रैपिडली आपका कटिंग टूल रैपिडली मूव करेगा, रैपिडली मूव, गो टू आपका कटिंग टूल मूव करेगा कहाँ पर, टारगेट पॉइंट पर चला जाएगा। इसके बाद स्पिंडल स्लैश ऑफ, स्पिंडल आप बंद कर दिया है। इसके बाद फिनी, प्रोग्राम को आपने एंड कर दिया। ठीक है, प्रोग्राम को एंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, फिनी, फिनिश। बताइए कोई दिक्कत है इस प्रोग्राम में आप लोगों को? नो सर, सिंपल है, यही मेथड है, यही। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर द प्लेट गिवन इन एग्जांपल नंबर 1 राइट APT पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर एंड मिलिंग ऑफ द 4 एजेस। अब तक हमने क्या किया था, अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन में केवल और केवल ड्रिलिंग की थी, एंड मिलिंग नहीं की। अब हमने अगला क्वेश्चन इसी को बना दिया, बोले कि इसी प्लेट पे हमें काम करना, अब ड्रिल नहीं करना, केवल एंड मिलिंग करनी है। अब एंड मिलिंग की बात करेंगे तो एंड मिलिंग में क्या करना है, आपको ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे भाई। पहले तो ये पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। फिर ये लाइन जो दी गई है, ये लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, ये लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ के साथ प्लेन भी एक आध डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लेन ऊपर होगा, एक प्लेन नीचे भी होगा, तो प्लेन भी आप लोगों को डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका पार्ट प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाएगा। तो पहले ये समझा देता हूं मैं क्या क्या हम लोगों ने किया। अब हमने क्या किया, वो ये जो होल है ना, इन होल से कोई मतलब नहीं है। अब हमने इसको पॉइंट P1 बना दिया है, इसको पॉइंट P2 बना दिया, ये वाला पॉइंट P3 बना दिया, ये वाला पॉइंट P4 बना दिया है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 70 mm है। 70 है कि ज्यादा है? एक मिनट रुको, ये गलत नहीं बनाया डायग्राम। पटाखे बनने यार बेच रहा हूँ। अरे भैया माइक ऑफ कर लो भाई पहलवान। बंद कर दिए ना। हाँ गड़बड़ हो रहा है ना, सही है। हाँ भाई, इसे कोऑर्डिनेट सही कर लेना भाई साहब, इसे कोऑर्डिनेट इसमें गलत दिए हैं। ये तो 70 ठीक है, लेकिन ये 70 नहीं था, इसकी लेंथ, इसकी 130 लेंथ है, 130 है लेंथ, है ना। लेंथ 130 होगी, देखो चेक करो, ये लेंथ इसमें गलत दी हुई है, ये शायद 130 है। 30 ये रहा, 70 ये रहा, 30 ये रहा, तो 30 और 30 60 और 70 130 हो गए। तो इससे कोऑर्डिनेट थोड़ी सी लेंथ देख लेना इनके। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट प्रोग्राम अपना। तो वही है, सिंपली मैंने बोला मशीन करना है, MACHIN स्लैश। अब क्योंकि इसमें हमें एंड मिलिंग करनी है तो मिल लिख देंगे, मिलिंग करनी है हमें, कॉमा 01 स्पेसिफाई कर दिया आपका कटिंग टूल, मशीन आइडेंटिफिकेशन नंबर पे स्पेसिफाई कर दिया, मतलब जो मशीन मिलिंग होनी है उसका कोड क्या है, 01 है, मिलिंग मशीन आपकी 01 नंबर पे है, ठीक है। फिर CLPRNT कटर लोकेशन डेटा को प्रिंट करने के लिए यूनिट आपने डिसाइड कर ली, MM में दे रहे हो कटर। अब क्योंकि जब आप एंड मिलिंग करोगे, एंड मिलिंग करनी है, मान ली आपको यहाँ पर ये प्लेट है, इस पर एंड मिलिंग करनी है, इसको अगर मैं साइड से बनाऊं इसका डायग्राम, फ्रंट डायग्राम साइड वाला, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको एक ना मिलिंग कटर इसके साइड में चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा, यहाँ पर साइड में मिलिंग कटर चलाना पड़ेगा, उसकी एजेस इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, इस तरीके से घूमता रहेगा चारों तरफ। तो ये आपका मिलिंग कटर हो गया। तो आपको कटर जो आप यूज कर रहे हो उसका डायमीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, कटर लिया और उस कटर का डायमीटर या रेडियस जो भी है वो आप लोगों ने डिसाइड की। तो कटर आ गया /25, तो ये 125 इसका क्या है, डायमीटर है। आप लोगों ने डायमीटर इसका डिसाइड कर दिया, हाँ जी, डिसाइड हो गया क्या नहीं। इसके बाद हमें टारगेट पॉइंट भी डिसाइड करना होता है, मतलब आप जो प्रोग्रामिंग करने वाले हो, प्रोग्रामिंग जहां से स्टार्ट करने वाले हो, वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो आपने टारगेट किया, टारगेट पॉइंट डिसाइड किया, टारगेट इज अ पॉइंट /x -50 y -50 z 10। ये बिल्कुल सही लिया है हम लोगों ने, थोड़ा सा क्लियरेंस मेंटेन रखा है z डायरेक्शन में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग मुझे।
नो सर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो पुराना वाला लगभग सेम है, बस इसमें कटर क्योंकि जो हम हाँ, हालांकि कटर हमें इससे पहले वाले में भी डिसाइड करना चाहिए था, है ना। कटर का जो डायमीटर कितना था वो भी हम लोगों को इससे पहले वाले में डिजाइन करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ये मान लिया कि जो कटर हमने सेलेक्ट किया वो वही सेलेक्ट किया है कटर जो कि जिस साइज का हमें होल क्रिएट करना था वही कटर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो यहाँ तक तो इनिशियली कमांड हो गई आपकी, प्री प्रोसेसिंग वो हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ज्योमेट्री को डिफाइन करना है। तो ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले इसमें पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर लाइन डिफाइन करने पड़ेंगे। तो P1 वी आर डिफाइनिंग द पॉइंट P1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x0 y0 z -25। ठीक है, z -25। बोलोगे सर -25 क्यों लिया, -20 वैसे तो 20 डिस्टेंस है, 25 क्यों लिया आपने माइनस में। इसमें देखो थोड़ा सा क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए x 2 3 4 5 है ना, तो ये 0,0,0 तो थोड़ा सा इसके ऊपर मान लिया 25 डिस्टेंस पे। ठीक है, 25 डिस्टेंस पे थोड़ा सा ऊपर हमने मान लिया है कि क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए। नहीं, ऊपर नहीं नीचे, ऊपर नहीं नीचे होगा। ये 0,0,0 ये 20, तो 25 मतलब ये वाला पॉइंट हमने एक यहां माना है, दूसरा पॉइंट यहां माना है, तीसरा इसके पीछे होगा इधर, ये वाला पॉइंट इसके जस्ट नीचे होगा, चौथा इसके जस्ट नीचे होगा। ये मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन ये पॉइंट जो है इस बॉडी में नहीं है, इस बॉडी में नहीं है P1 पॉइंट, वो इसके नीचे है, इसके जस्ट एक नीचे वाले प्लेन पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया ये प्लेट है तो इसके नीचे पॉइंट होगा यहाँ का, ये एक प्लेन माना है, इधर एक प्लेन माना है, उस प्लेन पे ये पॉइंट है, क्योंकि आपका जो कटिंग टूल है ना इस पॉइंट तक ड्रिल करते हुए एंड मिल करते हुए जाएगा, तो इस पॉइंट पर माना ये आपका -25 हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस -25। ठीक है, कि जब आप एंड मिल करोगे तो एंड मिल करते टाइम हम ये मानेंगे कि हमारा जो ड्रिल जो एंड मिल होगा, वो एंड मिल का जो एंड पॉइंट होगा वो यहाँ पर चलेगा, इस जगह चलेगा, इस लाइन पे चलेगा, इस जगह। ठीक है, एक मिनट जरा, थोड़ा सर क्लियरेंस देना पड़ेगा ना 5 का, हाँ हाँ 25 हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा 5 का ये तो क्लियरेंस सर दिया है। बिलिंग करता रहेगा साइड वाइज तो करता रहेगा सर ऐसे ही हाँ? चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ चलेगा, वो चारों तरफ -25 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कटर आपका रहेगा ना, इसमें जो कटर रहेगा वो कटर का ये वाला जो एंड होगा नीचे वाला, ये यहाँ ये इसके कोऑर्डिनेट देते हैं। अब ये पॉइंट हम नीचे डिसाइड करेंगे तभी आपकी ये वाली एज यहाँ चलेगी, अदरवाइज ये ऊपर उठ के चलेगा। ये वाला जो एंड होगा ये वाला एंड बताएगा कटिंग टूल का, इसीलिए हम थोड़ा सा क्लियरेंस देंगे। ओके सर। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिफाइन कर देंगे, पहले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट डिफाइन करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जैसे अगर मैंने बताया आपको कि ये है प्लेट आपकी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है और ये पॉइंट P4 है, ये P3 है और ये पॉइंट P4 है। ये 130 डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है शायद 70 है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0 और z की वैल्यू -25। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x 130 y0, x 130 y0 और z -125। P3 के कोऑर्डिनेट x 130 y 70 z -25 और P4 के कोऑर्डिनेट x 0 y 70 z -25। ठीक है, सारे पॉइंट डिफाइन हो गए। चलिए यस सर। अब सारे पॉइंट डिफाइन करने के बाद मैंने बोला जब एंड मिलिंग होगी तो हमें इन एजेस पे चलना पड़ेगा, इन एजेस पे चलना पड़ेगा, तो हमें लाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इसको हमने L1 मान लेंगे, इस लाइन को L2 मान लेंगे, इस लाइन को L3 मान लेंगे और इस लाइन को L4 मान लेंगे। तो हम पहले डिफाइन करेंगे पहली लाइन को, डिफाइनिंग द लाइन। तो लाइन L1 को हमने डिफाइन किया, ये क्या है L1 एक लाइन है, कौन सी ज्योमेट्री, एक लाइन है स्लैश। अब ये L1 कब मिलेगा, जब आप P1 पॉइंट को P2 पॉइंट से मिला दोगे। ठीक है, P1, P2, ये 4 हटा देना भाई साहब, यहाँ से 4 हटा देना, ये गलत लिखा है, 2 4 नहीं आएगा, P1, P2 आएगा। ठीक है, तो डिफाइनिंग द लाइन L1 that is a line which is obtained when we connect point P1 to P2। अब L2 लाइन को दिखाएंगे तो L2 is equals to line slash P2, P3। ये समझ में आ गया, L2 की से डिफाइन किया कि L2 एक लाइन है जो कब मिलेगी, जब पॉइंट P2 को P3 से कनेक्ट करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखना है,
फिर L3 इसी तरीके से L3 लाइन मिला दोगे, बनोगी कैसे, जब आप P3 को P4 पॉइंट से मिलाओगे, और लास्ट जो L4 लाइन है वो L4 लाइन आप लोगों ने यहां से इस लाइन को इससे मिला दोगे तो आपको L4 लाइन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो ये तो आपकी बॉडी है, ये तो आपका एक बॉडी है, ये तो प्लेन है, लेकिन साथ के साथ जो हमने -25 पे प्लेन डिसाइड किया है वो भी एक प्लेन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें दो प्लेन होंगे तो हमें एक प्लेन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो PL1 इज अ प्लेन स्लैश P1, P4, P3, तो P1, P2, P3, ये हमने एक प्लेन डिसाइड किया। PL1 एक प्लेन है जो P1 और P2, P3 ये सारे पॉइंट इससे पास हो रहे हैं, कोई भी 3 पॉइंट दे दो तो आपको प्लेन डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ, इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ, ये किस तरीके से हमने प्लेन बनाया है। सपोज ये हमारी बॉडी थी, ये मैं बॉडी बना दे रहा हूं अपनी, ये जो जिसपे हमें एंड मिलिंग करनी है। ये एंड मिलिंग की बॉडी है। ठीक है, तो ये विड्थ इसकी 20 है आई थिंक, हाइट 20 है, ये लेंथ कितनी है 130 है, और ये विड्थ कितनी है इसकी 70 है ना, ये 70 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 130, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी जो हाइट है वो 20 है। अब अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे एक प्लेन बनाना है, भाई एक प्लेन डिसाइड करना है जहां पर P1 और P3 पॉइंट है, P1, P2, P3, तो वो प्लेन कहां पर होगा बताओ? वो प्लेन होगा यहां पर, इधर अलग कलर से मैं बना देता हूँ वाला प्लेन। वो प्लेन होगा आपका ये वाला, यहां से यहां, यहां, यहां और यहां। ये प्लेन ये जो प्लेन आप देखोगे ये वाला, वो नीचे है इस बॉडी से। ठीक है, और जो P1, P2, P3 पॉइंट हम लोगों ने डिसाइड किए हैं वो ये तो P1 है, ये P2 है, ये P3 है और ये P4 है। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी देख रहे हो, ये थोड़ी सी इसके ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर, लेयर्ड बाई समझ सकते हो। अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा तो ये वाला प्लेन में सामने साइड से देखूंगा तो ये एक लाइन दिखेगी मुझे, और इसके ऊपर एक बॉडी दिखेगी मुझे, ये वाली बॉडी जो है वो यहां दिखेगी, यहां पे इधर। समझ में आ रहा है? इसका साइड से देखूंगा तो प्लेन नीचे दिखेगा, ये वाली बॉडी साइड में दिखेगी। तो यहां पर पॉइंट P1, P2, P3 इस वाली बॉडी पर है। तो हम एक प्लेन डिफाइन करेंगे, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है ये PL1 है। तो PL1 क्या है? PL1 एक प्लेन है जो कब मिलता है? अगर आप P1, P2, P3 इन 3 पॉइंट को पास करा दोगे उस प्लेन से तो आपको प्लेन डिसाइड हो जाएगा। प्लेन डिफाइन करने के मैंने मेथड बताए थे किस तरीके से एक प्लेन डिफाइन करते हैं। स्टार्ट में ज्योमेट्री को डिफाइन करने के तरीके मैंने बताए, तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला, वही बताया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है एंड मिल करने के लिए? अब देखो, अब आपका जो कटर है, अब हम लोगों ने सारी ज्योमेट्री डिफाइन कर दी, अब हम मोशन डिफाइन करेंगे कि आपका कटिंग टूल किस तरीके से मूव करेगा। तो देखो, फ्रॉम टारगेट, फ्रॉम से स्टार्ट करेंगे, कोई भी मोशन कमांड है, फ्रॉम टारगेट, आपका कटिंग टूल टारगेट से पॉइंट से मूव करना स्टार्ट होगा। फ्रॉम इनिशियल टारगेट पॉइंट go/2, go/2 कैसे? हाँ जी, go/2 का मतलब क्या हो गया? कंटूरिंग मोशन। हाँ, कंटूरिंग मोशन है एक तरीके से, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूअस मोशन है। ठीक है, तो आपको कटिंग टूल go/2 मतलब हमने इनिशिएट कर दिया है, इनिशिएटिंग द कंटूरिंग मोशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मोशन हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं। go/2 L1, ये आपकी L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है और ये L4 लाइन है, L4 लाइन है। ठीक है, आपका कटर यहां पर है, हम यहां से बात कर रहे हैं, यहां से इसको मैं साइड में और इसका साइड व्यू बना देता हूं यहां पे। अब हमें ड्राइव सरफेस, चेक सरफेस, ये सारी सरफेस डिफाइन करनी पड़ेंगी इसमें। ठीक है, go/2 ये go/2 है, go to नहीं है। फ्रॉम टारगेट go/2, आपका कटिंग टूल go/2 को फॉलो करेगा, मतलब यू आर इनिशिएटिंग
L1 आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपकी ड्राइव सरफेस कौन सी है। तो भाई L1 जब आपका कटिंग टूल यहाँ पर है, सपोज आपका कटिंग टूल कहाँ पर है, यहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पर आपका कटिंग टूल है, इस तरीके से जा रहा होगा आपका कटिंग टूल इस तरीके से, फिर ये वाली एज करेगा, फिर ये वाली आपका कटिंग टूल अब इस वाली एज पे चल रहा है, यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो जिस सरफेस पे मैंने बोला था, जो सरफेस गाइडिंग सरफेस होती है जिस पर आपका कटिंग टूल ड्राइव कर रहा है, उसको कौन सी सरफेस बोलते हैं, ड्राइव सरफेस। तो L1 क्या है, यस सर, आपने L1 डिफाइन किया। ठीक है, ड्राइव सरफेस डिफाइन करने के बाद यू आर डिफाइनिंग द ड्राइव सरफेस, इट इज द सरफेस ऑन विच योर कटिंग टूल इज मूविंग, ऑन विच योर कटिंग विच इज गाइडिंग द सरफेस ऑफ द कटिंग टूल। तो ये ड्राइव सरफेस होगी। सबसे पहले ड्राइव सरफेस आपने डिफाइन की, आपकी ड्राइव सरफेस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, चेक सरफेस, सॉरी नॉट चेक सरफेस, पार्ट सरफेस। पार्ट सरफेस क्या होगी, मैंने आपको बताया था कि भाई एक प्लेन इसके नीचे बना हुआ है, बताया था ना, वो PL1 मैंने डिफाइन किया हुआ है। यस सर, PL1 इसके नीचे है, तो वो कौन सी सरफेस हो जाएगी आपकी, पार्ट सरफेस। तो देखो इसके अगले वाले पॉइंट पे मैंने पार्ट सरफेस को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यस सर, ये पार्ट सरफेस को डिफाइन किया हुआ है। फिर क्या होगा, फिर चेक सरफेस आएगी। लेकिन चेक सरफेस से पहले अब आपको ये देखना है कि आपका जो ड्रिल बिट है या जो क्या बोलते हैं कटर है, मिलिंग कटर, ऐसे चल रहा है, टूल इस तरीके से चल रहा है, यहाँ चल रहा है। तो क्या इसमें ऑन आएगा, क्या इसमें ऑन आएगा, ऑन तो नहीं आएगा, गलत आएगा। नहीं सर, ये इधर चल रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, 2 आएगा, पास्ट आएगा, 2 आएगा ना सर, इधर ही तो है, अंदर थोड़ी है सर, अंदर होता तो पास्ट आता। इसी तरह चल रहा है, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑन की जगह पर 2 लिख देना है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया, चेक सरफेस। तो चेक सरफेस कौन सी है, L4। यस सर, गलत लिखा है, 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखो करेक्शन है इसमें, थोड़ा सा और एक बार और चेक बता देता हूँ। फ्रॉम टारगेट तो हो गया, टारगेट पॉइंट से आपका कटिंग टूल पहले ये डिफाइन करना है कि जो हमारा कंटूरिंग मोशन, जो भी मोशन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मूव नहीं करना है, हमें कॉन्टिन्यूस मोशन करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के अलोंग या लेफ्ट साइड या राइट साइड हमें जाना है। तो हमारा जो कटिंग टूल होगा वो कहाँ पर जाएगा, योर कटिंग टूल विल मूव टू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 जो लाइन है, मतलब आपकी L1 लाइन है जो ड्राइव सरफेस है, PL1 प्लेन 1, और ऑन नहीं आएगा यहाँ पे, 2 PL4 या PL4 जो आपका नॉट PL4 L4, मतलब लाइन 4, लाइन 1 और PL1, ये प्लेन जहां इंटरसेक्ट करेंगे आपका कटिंग टूल टारगेट पॉइंट से वहां पर जाएगा। मतलब किस जगह जाएगा, L1 ये, L4 लाइन ये है, L3 लाइन ये है, और प्लेन ये वाला है। मतलब आपका कटिंग टूल अभी यहाँ चला नहीं है, वो यहाँ पर है, यहाँ कहीं है। तो आपका कटिंग टूल यहाँ पहुंचा है, इस जगह पहुंचा है, ये वाली लाइन, ये वाला प्लेन, ये वाली लाइन, और ये यहाँ कहीं कट करेंगे इस जगह पर। मतलब आपका कटिंग टूल इस पॉइंट के नीचे है, यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर। ठीक है, जहां पर प्लेन ये वाली लाइन और ये लाइन, ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर पहुंच गया है आपका कटिंग टूल। ठीक है, अभी मतलब कटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, आपका कटिंग टूल कहाँ पहुंचा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंचा है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ये आपका प्लेन, ये वाली आपकी बॉडी है, और इसके नीचे मान लिया प्लेन है, ये वाला कोई प्लेन। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाली लाइन नहीं, PL1 PL2 PL3, ये लाइन ये वाली होगी। मैं पहले प्लेन बना देता हूँ, ये वाला प्लेन, नीचे वाले प्लेन की बात कर रहा हूँ। ये नीचे वाला जो प्लेन हमने डिफाइन किया है, तो ये वाली लाइन है नीचे, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन, बॉडी L1 L2 L3 बॉडी पर नहीं है, ये प्लेन पर है, L3 ये L4 है। तो आपका ये पूरा प्लेन जो है वो PL1 है, ये PL1 प्लेन है। तो आपका जो कटिंग टूल है, अभी वो कटिंग टूल पहुंचा कहां पर है, वी आर स्टार्टिंग दी कंटूरिंग मोशन, वी आर स्टार्टिंग दी और इनिशिएटिंग द सीक्वेंस ऑफ कंटूरिंग मोशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने के लिए हमारा जो कटिंग टूल है वो टारगेट पॉइंट से कहां जाएगा, L4 L1 और जो आपका प्लेन 3 है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर जा रहा है। मतलब यहां कहीं पहुंच गया आपका कटिंग टूल।
अब यहां से मोशन देना स्टार्ट करेंगे, हम यहां से क्या करेंगे, मोशन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आया समझ में अभी? हेलो, समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो कटिंग टूल है, गो टू द इंटरसेक्शन ऑफ योर कटिंग टूल विल मूव फ्रॉम टारगेट पॉइंट and will go to the point of intersection of L1 that is drive surface, PL1 that is part surface and to L4। ठीक है, आपकी जो L4 जो एंड वाली सरफेस है इस तक जाएगा। एंड इसके बाद आपका कटिंग टूल टारगेट पॉइंट से जहां पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, स्पिंडल जो है, अभी आपका स्पिंडल आपने स्टार्ट नहीं किया है, स्पिंडल को आपने स्टार्ट कर दिया 500 आरपीएम में विद क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने स्पिंडल को स्टार्ट कर दिया विद 500 आरपीएम इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वी हैव स्पेसिफाइड। इसके बाद हम लोगों को फीड रेट देनी पड़ेगी। फीड रेट वी हैव गिवन 20 mm पर मिनट। 20 mm पर मिनट में हम लोगों ने फीड रेट को स्पेसिफाई कर दिया है। अब क्या करना है, अब मूव करना है आपका कटिंग टूल। अब जो लोकेशन है, अब बताता हूँ राइट लेफ्ट कैसे जाएगा। अब आपका कटिंग टूल है यहां पर, यहां कहीं है, इसके प्लेन के नीचे इधर। ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर है, यहां कहीं इधर होगा। अब आपका कटिंग टूल, हालांकि इसमें राइट गलत लिखा है, आरजीटी गलत लिखा है, फॉरवर्ड आएगा, FWD आएगा। गो राइट मतलब अगर हम इस यहां से मानेंगे तो आपका कटिंग टूल इस पर्टिकुलर लोकेशन से थोड़ा सा राइट में चलेगा। L1 का मतलब ये आपकी ड्राइव सरफेस होगी, ये L1 आपकी ड्राइव सरफेस रहेगी। पास्ट तब तक चलेगा L2 जब तक कि आपकी L2 सरफेस ना आ जाए। ठीक है, गो राइट, आपका कटिंग टूल यहां से, मान लिया यहाँ कहीं पोजीशन पे, यहां से राइट में जाएगा। राइट जाने के बाद इसके बाद इस डायरेक्शन में चलेगा, इस वर्क पीस के राइट में जाने के बाद इस डायरेक्शन में चलेगा, तब तक चलेगा पास्ट L2। देखो ये जब आपका कटिंग टूल यहां जा रहा है इधर, तो पास्ट आ जाएगा इस वाले के, इसमें मतलब दूर जा रहा है। और यहां है, अगर आपका कटिंग टूल यहां ना जा करके अगर यहां जाता, इधर अंदर आता तो 2 होता, और अगर इस पर चलता तो ऑन होता। ठीक है, यहां से जाने के बाद दूर जा रहा है ना, बाहर वाली सरफेस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके बाहर चल रहा है तो पास्ट आएगा, इस पर चलता तो ऑन आता, और इस पर चल रहा है तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपका कटिंग टूल इस लोकेशन से इधर गया, राइट में थोड़ा सा हमने कमांड दी। अब इसके बाद इधर चल रहा है आपका कटिंग टूल, तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी चेक सरफेस, ये मोशन इस डायरेक्शन में कब फिनिश हो जाएगा, जैसे ही आपकी ये वाली सरफेस आ जाएगी, L2 आ जाएगी। L2 नहीं आ जाता तब तक आपका कटिंग टूल मूव करता रहेगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया इस वाले का। वैसे जहां गो राइट की जगह पे फॉरवर्ड होना चाहिए, FWD, गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो अभी हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इधर यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें कहां जाना है, राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है? लेफ्ट में सर। ये पाथ चल रहा है आपका कटिंग टूल का, तो अब लेफ्ट में जाना है। अगले वाले में क्या करना है, गो लेफ्ट। ठीक है, फिर आपको डिफाइन करना है आपको ड्राइव सरफेस। ड्राइव सरफेस कौन सी है आपकी, ये वाली। अब देखो पार्ट सरफेस होगी, वो चेंज नहीं हो रही है आपकी। पार्ट सरफेस तो वही है जिसपे आपका पैरेलल है। पार्ट सरफेस को बार बार डिफाइन करना तो नहीं है। पार्ट सरफेस हमने पहले ही डिफाइन कर ली है, आपकी PL1 इज अ पार्ट सरफेस। ठीक है, अब गो लेफ्ट जाना है, लेफ्ट में गए, L2 आपकी, अब नई जो ड्राइव सरफेस होगी वो आपकी L2 होगी। पास्ट कब तक चलना है आपके कटर टूल को, जब तक कि L3 ना आ जाए। ये L3 हो जाएगी, जब तक कि L3 ना आ जाए। जो ऊपर वाला है सर, हाँ हाँ, ये ऊपर वाला जो नहीं, गो राइट है उसको काट के सर गो फॉरवर्ड करना है। हाँ, इसको राइट को फॉरवर्ड कर दो। आपका कटिंग टूल यहाँ आ चुका था ना, यहाँ पे। यस सर। तो अब फॉरवर्ड ही जा रहा है, वो लेफ्ट राइट थोड़ी ना जा रहा है, फॉरवर्ड ही जा रहा है। तो गो फॉरवर्ड जाओगे, और ये आपके ड्राइव सरफेस होगी, तब तक चलेगा जब तक कि आपका चेक सरफेस ना जाए। बाकी सब सही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वाली लाइन समझ में आ गई। इसके बाद ये बता दिया मैंने, गो लेफ्ट का मतलब है यहां से आपका कटिंग टूल लेफ्ट में जा रहा है। ये आपकी ड्राइव सरफेस, नई ड्राइव सरफेस हो जाएगी L2। कब तक चलेगा, जब तक कि L3 सरफेस ना आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला स्टेटमेंट। कहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, टाइम तो हो चुका है, L3 तक। L3 मतलब यहां तक पहुंच गए, यहां के बाद यहां तक पहुंच गए। अब हमें
फिर लेफ्ट में जाना है तो गो, यस सर। यहाँ तक हो गया। फिर अब गो लेफ्ट, लेफ्ट में जाएंगे अगेन L3 to 4। L3 पास्ट 4, जब तक कि 4 ना आ जाएगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर। फिर क्या करना है, फिर लेफ्ट में जाना है, गो लेफ्ट L4, तब तक चलेंगे जब तक कि L1 ना आ जाए। L1 ना आ जाएगा तो पूरी एंड जो है वो क्या हो चुकी है, मिल हो चुकी कवर हो है। जाएगा। मिलेंगे। इसके बाद रैपिड, आपका कटिंग टूल यहाँ पूरा मिल करने के बाद रैपिडली मूव करेगा टारगेट पॉइंट पे, जहां भी आप लोगों ने टारगेट पॉइंट बताया। टारगेट पॉइंट पे जाएगा, स्पिंडल स्लैश ऑफ, स्पिंडल को आपने स्विच ऑफ कर दिया है, फिनी कर देंगे, प्रोग्राम को एंड कर दिया, काम खत्म। ये आपकी एंड मिलिंग। यस। ठीक है, ये आपकी एंड मिलिंग हो जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो कर लेना। अगर हम कंटूरिंग मोशन और करेंगे इसका अगले वाले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटूरिंग मोशन एक क्वेश्चन करेंगे। ओके। आपको ये प्रोग्राम, ये आपका मिलिंग का है और ये प्रोग्राम आपका ड्रिलिंग का, ये दोनों प्रोग्राम आपको अपनी फाइल में लिखने हैं।